ویلکم بیک اور بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے تمام ٹاؤنز میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی جانب سے کیپٹن کرنل شیر خان اسپورٹس گراؤنڈ اور فیملی پارک کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں کارکنان نے پارٹی قیادت کے حق میں نعرے لگائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ ہماری قیادت کی واضح ہدایت ہے کہ ہر علاقے میں بلا تفریق عوام کی خدمت کرنا ہے۔ ریزروائر پر گیا تھا، وہ بنے ہوئے 45 سال ہو گئے، میری پیدائش سے پہلے کا ہے، وہ کبھی صاف نہیں ہوا تھا۔ اس کے اندر جب آپ گئے اور کچھ دوست آپ میں سے میرے ساتھ تھے جب ہم گئے تھے، 15 16 فٹ 20 فٹ کا ریزروائر تھا، 15 فٹ 16 فٹ اس کے اندر مٹی تھی۔ اور میں اپنے جیالوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے قائل کیا، مجھے بتایا اس بارے میں کہ سر وہاں جگہ ہے، وہاں جانے کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ 15 MJD کے وہ ریزروائر ہیں، 7.5 MJD صفائی ہو چکی ہے۔ اب اگلے 7.5 پہ ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے اور کوشش یہی کر رہا ہوں کہ رمضان شریف سے پہلے ورنہ پہلے عشرے میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر دیں گے، تاکہ جو ویسٹ کی عوام ہے، اورنگی کی عوام ہے، منگو پیر کی عوام ہے، مومن آباد کی عوام ہے، ایون بلدیہ تک جاتا ہے، موری پور کے کچھ علاقوں تک یہ پانی جاتا ہے ریزروائر سے، ان کا ہم بھلا انشاءاللہ کر سکیں۔ اچھی خبر ایک اور یہ ہے کہ 46 ارب روپے کے علاوہ تقریباً 8.5 ارب روپے کی کل میں نے منظوری کرائی ہے، اور 8.5 ارب روپے میں 5.5 ارب روپے کی لاگت سے کراچی شہر میں 25 نئی سڑکیں، اور 7 اضلاع میں، یہ نہیں کہ کسی ایک ضلع میں کام ہو رہا ہوگا، یہ نہیں کہ کسی ایک ٹاؤن میں کام ہو رہا ہوگا، 7 اضلاع میں ان 25 سڑکوں کو بائیفرکیٹ کیا۔ یہ وہ سڑکیں ہیں جو کہ کنیکٹ کرتی ہیں شاہراہوں کو، لوگوں کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ کل اس کی میں نے منظوری کرا لی ہے، 20 تاریخ کو انشاءاللہ اس کا ٹینڈر کھلے گا، اور میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ مجھے 20 تاریخ کے ایک ہفتے کے اندر ان سڑکوں پر کام سٹارٹ چاہیے، تاکہ کراچی والوں کو پتہ چل سکے کہ جب بلاول وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ویسٹ کے صدر عابد ستی، انفارمیشن سیکریٹری علی اکبر کاچھیلو، پیپلز یوتھ کراچی ڈویژن کے جنرل سیکریٹری حیدر خان، لیڈیز ونگ کراچی کی انفارمیشن سیکریٹری مسرت، ڈپٹی میئر سلمان مراد، ٹاؤن چیئرمین منگو پیر حاجی نواز بروہی اور جیالو کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ پاکستان میں شوگر کا مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دنیا میں شوگر کے مرض کے حوالے سے پاکستان کا 3را نمبر ہے۔ واک اور صحت مند غذا سے ہم اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن چیئرمین اورنگی حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کوئی دوسری خدمت نہیں۔ پاکستان میں شوگر کا مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دنیا میں شوگر کے مرض کے حوالے سے پاکستان کا 3را نمبر ہے۔ واک اور صحت مند غذا سے ہم اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے ادارہ برائے انسانی حقوق انٹرنل فورم آف پاکستان کے تحت اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 میں ایک روزہ انسان دوست میڈیکل کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے کہی۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے میڈیکل کیمپ کے چیئرمین ڈاکٹر ہاشم سندیان، ڈائریکٹر ڈاکٹر سلمان خان، دیگر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور مریضوں سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر ہاشم سندیان نے ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کو بتایا کہ اس میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر چیک اپ اور معائنہ اور مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہر 10واں فرد شوگر کے مرض میں مبتلا ہے۔ اورنگی ٹاؤن ایک پسماندہ آبادی پر مشتمل ٹاؤن ہے۔ یہاں کے لوگ محنت مزدوری کے شعبے سے وابستہ ہیں، معاشی طور پر کمزور ہیں۔ شوگر کا علاج مہنگا اور مسلسل ہے۔ غریب لوگوں کے پاس مہنگی ادویات کی مسلسل خریداری ممکن نہیں۔ آپ کے اس کیمپ سے غریب مریضوں کو علاج معالجے کی وقتی سہولت میسر آئے گی۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ شوگر جیسے موذی مرض سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں معمولاتی زندگی میں واک، ورزش اور متوازن غذا کو شامل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کیمپ میں موجود ڈاکٹر سے گفتگو کرتے ہوئے خدمت انسانیت کے جذبے کی تعریف کی اور کہا کہ اس پسماندہ علاقے میں کیمپ لگا کر غریب مریضوں کا علاج کر کے ان کے درد کو کم کیا ہے۔ اس موقع پر ادارہ برائے انسانی حقوق انٹرنل فورم آف پاکستان چیئرمین ڈاکٹر ہاشم سندیان، ڈائریکٹر ڈاکٹر سلمان خان اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کو پھولوں کا گلدستہ اور یادگاری شیلڈ پیش کی۔ بعد ازاں ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے طبی معائنہ کروایا۔ دورے کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ PS 95 کے جنرل سیکریٹری طارق علی اور بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज नईम उर रहमान का यूनियन कमेटी नंबर 5 राशिद मिन्हास एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की बहाली और तज़ीन व आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाज़िमाबाद की जानिब से तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए राशिद मिन्हास एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का तोहफा है। हाफिज नईम ने कहा कि जमात इस्लामी महज दावों पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात के जरिए तालीमी इदारों को बेहतर बनाने पर यकीन रखती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाज़िमाबाद के इश्तराक से यूनियन कमेटी नंबर 5 राशिद मिन्हास एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की बहाली और तज़ीनों के बाद बाकायदा इफ्तिताह अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान ने अपने दस्ते मुबारक से किया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। नाते रसूल मकबूल पेश की गई। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि मेयारी यकसा और बावकार तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और कौमों की तरक्की का इन्हिसार मजबूत तालीमी निज़ाम पर होता है। जमात इस्लामी महज दावों पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात के जरिए तालीमी इदारों को बेहतर बनाने पर यकीन रखती है। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर खान, अमीर जमात इस्लामी जिला वस्ती वजिया हसन, चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, वाइस चेयरमैन मोहम्मद नोमान सिद्दीकी, म्यूनसिपल कमिश्नर अतर सईद खान और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। जबकि असातिज़ा कराम, तलबा व तालिबात, वालिदैन और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान ने नाज़िमाबाद टाउन में तालीमी इदारों की बेहतरी, स्कूलों की अपग्रेडेशन और असातिज़ा की तरबियत को खुश आइन करार दिया। उन्होंने कहा कि राशिद मिन्हास एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स कौमी हीरो निशान हैदर राशिद मिन्हास के नाम से मंसूब है, जो पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। तालीम के लिए असातिज़ा की तरबियत, इज्जत और पेशा वराना तरक्की नागुज़ीर है। असातिज़ा की मुसलसल ट्रेनिंग, उनकी तरक्की और मराहत पर तवज्जो देना एक मुस्बत कदम है, क्योंकि बेहतर उस्ताद ही बेहतर कौम की बुनियाद रखता है। उन्होंने बच्चों की निसाबी तालीम के साथ साथ इखलाकी तरबियत, किरदार साजी और इजाफी सलाहियतों को उजागर करने की भी जरूरत पर जोर दिया। तकरीब के दौरान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान ने बन्नू काबिल प्रोग्राम के हवाले से अहम ऐलान करते हुए कहा कि बन्नू काबिल के तहत राशिद मिन्हास एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के तलबा व तालिबात को फ्री IT कोर्सेज फराहम किए जाएंगे, जबकि काबिल तलबा व तालिबात के लिए स्कॉलरशिप्स का भी एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक IT और स्किल डेवलपमेंट वक्त की अहम जरूरत है, ताकि नौजवान तालीम के साथ अमली मैदान में भी खुद को बाइख्तियार बना सकें। चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि बल्दियाती इदारे महदूद वसाइल और इख्तियारात के बावजूद अवामी फलाह के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तालीम, सेहत, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात के शोबों में बेहतरी लाना आसान नहीं, ताहम खुलूस नियत और दुरुस्त तरजीहात के साथ ये काम मुमकिन बनाया जा रहा है। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख की जानिब से सजाया गया 10 रोज़ा फ्लावर शो अवामी पजीराई हासिल कर रहा है, जहां रोजाना पार्टी क़यादत के दौरे जारी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की ज़ेरे निगरानी जारी 10 रोज़ा जश्न बहारा के 5वें रोज मेहमानान खुसूसी पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीज़न के सदर असलम समो, पीपल्स लेबर ब्यूरो सदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी अदनान हबीब और दीगर मरकजी काबीना ने शिरकत की। जश्न बहारा 5वें रोज भी अपने अरूज पर रहा। मेहमानान खुसूसी ने मुख्तलिफ स्टॉल, फूलों की नुमाइश और इंतजामात का मुआयना किया और चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की कारकर्दगी को भरपूर अंदाज में सराहा। इस मौके पर असलम समो ने कहा कि चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर कोरंगी टाउन की तामीर और तरक्की के लिए अमली इकदामात कर रहे हैं, जिसकी बदौलत अवामी मसाइल में वाज़े कमी देखने में आ रही है और मजदूर तबके की फलाह बहबूद के लिए उनकी काविशें काबिले तारीफ हैं। अदनान हबीब का कहना था कि कोरंगी टाउन में जारी तरक्याती मंसूबों, सफाई सुथराई और अवामी सहूलियात की फराहमी चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख की संजीदा और मुखलिस क़यादत का सबूत है। आखिर में चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो आवाम की खिदमत को अपना मिशन समझते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कोरंगी टाउन को एक मिसाली टाउन बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। फैमिलीज ने भरपूर खिदमत करते हुए खुशगवार लम्हात गुजारे। जश्न बहारा के 5वें रोज कोरंगी की आवाम फूलों की नुमाइश, रंगारंग तकरीबात और खूबसूरत तफरी सरगर्मियों के साथ साथ म्यूजिकल प्रोग्राम से भी लुत्फ अंदोज हुई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि गुलशन इकबाल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहीं, जिसमें मुतादिद ठेले पथारे जब्त किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उज़्मा कराची गुलशन इकबाल डिवीज़न की जानिब से अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रोड गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 और 5 के अतराफ में कार्रवाई करते हुए होटलों की जानिब से कब्जा की गई फुटपाथ वागुजार करवा ली गई, जबकि टेबल कुर्सियां, तवा, गैस सिलेंडर और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। दौरान कार्रवाई गैर कानूनी सनशेड्स का भी खात्मा किया गया। इस मौके पर मौजूद डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना ने तजावुज़ात कायम करने वालों को सख्त तनबीह करते हुए कहा, आइंदा तजावुज़ात कायम करने की सूरत में उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कार्रवाई की निगरानी एडिशनल डायरेक्टर गुलशन इकबाल अली अलमदार ने की। नाज़माबाद टाउन के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की हिदायत पर फ्लावर शो की तैयारियां उरूज पर। कल नुमाइश का इफ्तिताह किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नाज़माबाद टाउन के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की हिदायत पर फूलों की नुमाइश की तैयारियां जारी हैं। नुमाइश की तैयारी के हवाले से डायरेक्टर पार्क आसिफ खान ने पार्क्स का दौरा किया और कहा कि ये फूलों की नुमाइश 4 रोज के लिए माहिरुल कादरी फैमिली पार्क में लगाई जा रही है, जिसका इफ्तिताह कल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर कई इकसाम के फूल पौधे लगाए हैं। ये हमारी इस साल की दूसरी नुमाइश होगी। ये 4 रोज़ा नुमाइश हम करने जा रहे हैं माहिरुल कादरी पार्क नाज़माबाद नंबर 4 पे, और ये हमारा दूसरा सालाना फ्लावर शो है। इससे पहले भी हमने पिछले साल यहाँ पे फ्लावर शो किया था। तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मुजफ्फर साहब, उनकी हदायत के मुताबिक अब हम दूसरा फ्लावर शो करने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने 50 से ज़्यादा वैरायटी रखी है और 50,000 फूल हैं जो हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिली है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मुजफ्फर साहब का कि जिन्होंने हमें जो है इसमें फ्लावर शो के अंदर काम करने के लिए इजाज़त दी और बाकायदा तौर पे हमें ये कहा गया कि इससे बढ़ चढ़ कर आपने लोगों के लिए एंटरटेनमेंट करनी है। तो मैंने और मेरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम किया है और हम इंशाअल्लाह ताला 12 फरवरी 2025 को माहिरुल कादरी पार्क नाज़माबाद 4 नंबर पे ये फ्लावर शो करने जा रहे हैं। वाज़े रहे फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह जमात इस्लामी की क़यादत करेगी। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS97 और चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम की हिदायत पर यूसी नंबर 5 वजीर बरोही गोट को मॉडल बनाने के लिए तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इलाका मकीनों की देरीना मुश्किलात के हल और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम का सिलसिला तेजी से जारी है। काम शुरू होते ही इलाका मकीनों में खुशी की लहर फैल गई, जबकि आवाम ने इन इक़दाम को सराहते हुए चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया। गलियां रोड बना के दे रहे हैं, उनकी बहुत मेहरबानी पीपल्स पार्टी का। हमारे कोर्ट में काम स्टार्ट कर दिया। नारा भुट्टो लाला करा रहे हम लोग, उसको बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया उसका, अल्लाह उसको खुश रखे हमारे दुआ से। ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस काम के हवाले से भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत अच्छा हो गया कि हमारे करीब का काम स्टार्ट हो गया। आज तेरे दिन है और हम इससे शुक्रिया अदा करेंगे और लाला रहीम का और क्या पार्टी नाम है इसका, पीपल्स पार्टी का। बहुत अच्छा काम स्टार्ट है, अल्लाह करे से। बहुत सालों से हमारी ये काम रुका हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आज पब्लिक खुश है, ये काम हो रहा है। कह रहा है हम सेवरेज भी बनाएंगे और ये गलियां भी पक्का करेंगे और कह रहा था बिजली का निजाम है आगे पीछे जो भी हम करेंगे। हम बहुत खुश हो गए। अल्लाह ताला हमारा दुआ है, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, लाला रहीम जिंदाबाद। तो ये कह रहे हैं कि ये बन जाए, हमेशा इसमें जो है पानी खड़े होते हैं, लोगों को तकलीफ होता है, बच्चों को, और जनानी इधर से आते जाते ड्यूटी वाले शुरू है। पहले तो मैं कह रहा था ये क्यों तोड़ दिया, बड़ा गुस्सा आया जब उसको बोला, लोगों से पूछा, वो कह रहा था रोड बन रहा है। सबसे सुबह से मैं देख रहा हूँ ना, इस काम बड़ा जल्दी शुरू है इसमें और अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। लाला रहीम साहब ने ये यहाँ पे खुसूसी अपने जो है यहाँ तवज्जो दी और यहाँ पे फी गली में, हर गली में पेवर ब्लॉक और सीसी फ्लोरिंग का काम जारी है। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब का और यहाँ के हमारे बड़े भाई अपना टाउन चेयरमैन लाला रहीम साहब का और सुल्तान बुलेरी साहब का जो यूसी फाइव के चेयरमैन है, जिन्होंने ये काम करा रहे हैं। मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाउन चेयरमैन लाला रहीम साहब का। ये भुट्टो काम हो रहा है अपना पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रहा है, टाउन चेयरमैन की तरफ
यूसी चेयरमैन की तरफ से अभी सी ब्लॉक का काम शुरू है, इंशाल्लाह बेहतर हो रहा है, आगे भी बेहतर होगा। मेहरबानी। हमारे इस वोट में कभी काम नहीं हुआ था, ये बहुत मेहरबानी है पीपल्स पार्टी वालों को। लाला रहीम जो है हीरो हैं, बिल्कुल काम करवा रहे हैं, शुक्रिया। गलियों में काम हो रहा है, उसकी बड़ी मेहरबानी उसकी, जो हमारे गलियों को बड़ी उसकी मेहरबानी होगी बाबा, आगे भी उसकी शुक्रिया होगी, मेहरबानी जो हमारा गलियों का काम कर रहा है, ये उसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है लाला साहब की और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है ना हमारी गलियां मंजूर हुई है और गलियों का काम हो रहा है। ये एक गली भी होएगी सारा बिल्कुल बेहतर हो रहा है, जो कुछ करा है बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपका बड़ी बड़ी शुक्र। लाला रहीम करवा रहा है, बहुत टाइम से आज तक वजीर में ऐसा काम नहीं हुआ जो लाला रहीम कर रहा है। बड़े भाई खड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं लोग गटर सब कुछ हम लोगों को पीपी दिया है, पीपी। हमारे इस वक्त हम मौजूद हैं UC5 सोराबगोट टाउन में आता है। UC5 वजीर बिरोही गोट, यहाँ पे काफी अरसे के बाद, मुद्दतों के बाद हमें ये काम नजर आ रहा है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा रही है, लाला रहीम करवा रहा है। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई ये नहीं कि हम किसी की गिला करें या किसी की तारीफ करें। मेन मसला ये है कि जब इलाके का काम होगा, चाहे लाला करवाए, पीपल्स पार्टी करवाए, जमात इस्लामी करवाए या कोई भी करवाए, हम उसको प्रोमोट करेंगे। हम उसके लिए ये भी कहेंगे कि भाई जितना काम आपने हमें दिया, 3 गलियां या 4 गलियां, तो ऐसे इलाके, एक बंदा सिर्फ अपने इलाके के लिए बोले तो ये बेहतर मैं नहीं समझता। बराबर में नूर खान गोट है, दूसरे गोट है, जहां पे भी ऐसे इलाके हैं जहां पे भी ये कच्ची आबादियां हैं, वहां पे भी ये काम किया जाए। अभी कुछ टाइम पहले हम वहां पे गए थे लासीकोट की तरफ, तो वहां पे भी दानी साहब ये काम करवा रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। जहां पे काम होगा वहां पे हम तारीफ करेंगे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करवा रही है, लाला रहीम काम करवा रहा है। हम फिर भी ये बोलेंगे कुछ अरसे के बाद, मगर लाला को हमारी याद तो आई, लाला को वजीरकोट की आवाम की याद तो आई। बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमारे को ये गलियां, ये रोड जो मिला हुआ है वजीर बिरोही गोट का, ये शुक्र है मेरे मालिक बहुत अरसे के बाद पीपल्स पार्टी वालों की तरफ से लाला रहीम की बड़ी मेहरबानी है और जो हमारे को याद किया है इंशाल्लाह ताला ये मेहरबानी लाला रहीम अजिया सुल्तान फुलीद साहब अजिया जो गोठ जी गलियूं मंजूर कराए तो असां खुश नसीब हूं। अल्लाह उन्हनि खे आबाद कंदो, जिए फुट। इहा बि वॾी महिरबानी आहे तव्हांजी असांजे मथां, शुक्र अलहमदिल्ला। गोठ जी वॾी मरमत हले पई, इन लाइ शुक्रिया तव्हां। तक़रीबन 10 साल कम किया आहिनि। जीना टाउन के ज़ेरे एहतमाम जौहर पार्क में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर ने कहा, ऐसी नुमाइशों से लोगों का हौसला बढ़ता है। जमात इस्लामी लोगों की खिदमत पर यकीन रखती है। तफसीरात आमिर आवान की इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिना के ज़ेर एहतमाम फ्लावर शो सजा दिया गया, जिसका इफ्तिताह अमीर जमात इस्लामी मनम जफर ने किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद लोगों का हुजूम पार्क को रौनकें बख्शता रहा। मुख्तलिफ अक़साम के फूल लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। अमीर जमात इस्लामी मनम जफर ने कहा, जमात इस्लामी के हर टाउन में आपको काम होता नजर आएगा। उन्होंने सिंध हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा, अगर तरक्याती कामों को देखना है तो जमात इस्लामी के किसी भी टाउन आ जाएं। समझ कर फेंक देते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को रिसाइकिल करके इस खूबसूरत पार्क को जो है वो डेवलप किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ इस बात का इजहार करता हूँ कि देखें, जिस जज्बे के तहत, जिस टीम स्पिरिट के साथ, जिस अमानत के साथ, जिस दयानत के साथ आप लोगों ने ये फ़र्ज़ अदा किया है कि एक जानिब कम्युनिटी है, दूसरी जानिब टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन और उनकी पूरी टीम है कि जिन्होंने इस पार्क को डेवलप करने के लिए आपके साथ ताउन किया है। यही कोऑर्डिनेशन, यही कम्युनिटी वर्क कि जिसके नतीजे में हम अपने न सिर्फ महल्ले को, अपनी आबादी को, अपने टाउन को और उससे आगे बढ़कर हम अपने शहर को खूब से खूबसूरत बना सकते हैं, इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और आज हमारा अलमिया ये है कि ये शहर और इसके रहने वाले
जो इस शहर से बहुत सी उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह ओनरशिप तायरा साहिबा ने ली है, यूसी चेयरमैन साहब ने ली है, अगर इस तरह की ओनरशिप लोग लें तो ये शहर बिल्कुल अलग मंजर पेश करेगा। टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने भी जिना टाउन की जानिब से किए गए कामों का जिक्र छेड़ दिया। कहते हैं तरक्कियाती कामों का जाल बिछाया है, आवाम को बड़ा रिलीफ इस साल दे रहे हैं। ये जो खूबसूरत पार्क आपको नजर आ रहा है, आप आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले इसका विजिट करते तो ये एक बंजर और वीरान सी जगह थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिना टाउन के तहत हम दर्जा बदर्जा बतदरीज अपने 40 पार्कों में से डेवलप करते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जिना टाउन के सारे पार्क आपको डेवलप भी नजर आएंगे और इसी तरह हसीन और गुलो गुलजार नजर आएंगे। ये पार्क जो आपको नजर आ रहा है, इसमें मैं खास तौर पे हमारी जो कम्युनिटी की खवातीन हैं जिन्होंने दिन रात, मैंने आई विटनेस किया कि रात के 10 बजे तक भी 11 बजे तक भी बैठ के वो यहाँ काम करती रहीं और इन्होंने अपने हाथों से इस पार्क को जो है संवारा है और बनाया है। और मेरे दाएं हाथ पे जो आपको ड्रेस डेकोरम के साथ जो स्टाफ नजर आ रहा है, ये वो टीम है हमारी, ये वो हाथ है। जब अपने हाथ दिखाइए, ये वो हाथ है कि जिसके जरिए इन्होंने इस पार्क के कोने कोने को और गोशे गोशे को संवारा है। इसमें हमारे अफसरान हैं, मैं खास तौर पे पार्क डिपार्टमेंट, हमारा BNR डिपार्टमेंट, हमारे MND डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और जिना टाउन की पूरी टीम ने इसमें एक मुश्तरका कोशिश की है, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि इनके लिए पुरजोर तालियां भी हों और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। जमात इस्लामी के बल्दिया उज़्मा के कराची में पार्लिमानी लीडर जुनैद नकाती ने कहा, हल सिर्फ जमात इस्लामी है, हम आने वाले दिनों में मुखालिफिन को भरपूर जवाब देंगे। फ्लावर शो से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। सिंध हुकूमत ने लोगों को मायूस किया है। फ्लावर शो में और इस पार्क को बनाने के लिए हमारे पार्क डिपार्टमेंट का पूरा अमला, हमारे जिना टाउन का पूरा अमला, हमारी यूसी का पूरा अमला और ख़ास करके मेरी बहनों ने जो दिन रात मेहनत की है और हमारी जो तायरा हजारी साहिबा हैं, इन्होंने मेहनत की है। तो ये बात मतलब किसी से छुपी हुई नहीं है और मैं ये बात कहूँ तो ये गलत ना होगा कि तायरा हजारी जो हमारी काउंसलर हैं और हमारी बहनों ने जो दिन रात मेहनत की है, तो आज ये पार्क इस जगह पर पहुंचा है। और हमारे जहन में एक बात हमेशा होती है कि सरकारी लोग जो हैं वो ऐसे ही बैठे होते हैं, नालायक होते हैं, नाअहल होते हैं, लेकिन जो हमारी पार्क डिपार्टमेंट की जिस टीम ने दिन रात जो मेहनत की है, तो जो मेरे जहन में या जो लोगों के जहन में जो तस्वुर है वो बिल्कुल ख़त्म है। मतलब दिन रात इन्होंने मेहनत की है और दिल से मेहनत की है। एक होता है ना कि आदमी अपनी जॉब पूरी कर रहा है, अपना टाइम पूरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं, इन्होंने पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। और आप देखेंगे ये पार्क जो है, इसमें हमने हर चीज़ तकरीबन रिसाइकल की है। इसमें बेशुमार चीज़ें हमने बनाई हैं जो रिसाइकल करके बनाई हैं। अगर हम खरीदते इसको तो बड़ा मसला होता। दूसरे जो प्लांट्स हमने उगाए हैं, ये प्लांट्स हम खरीद सकते थे, फ्लावर शो के लिए लोग प्लांट्स खरीदते हैं, लेकिन हमने इसके बीज से शुरू किया। इसके बीज डाले, फिर उसकी पनीरी बनी, फिर उसके फूल बने, फिर उसको दिन रात मेहनत की, उसको औलाद की तरह पालना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि आप समझ लें कि भाई एक दफ़ा आपने बीज डाल दिया और पानी देते रहें, बल्कि उसके अंदर से जंगली घास भी निकालनी पड़ती है। और ये सारी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ने मुझे अपनी काउंसलर तायरा हजारी पर, हमारे जो काउंसलर मर्द और ख़वातीन हैं उन सब पर, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं कामरान साहब जो अहमद उसके हैं, इनकी टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया और दिन रात काम किया। और बहुत हमने इनको मुख्तसर वक्त में बड़ा टारगेट दिया और वो टारगेट भी इन्होंने पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पर हम पहुंचे। फूलों की नुमाइश को जिना टाउन की आवाम ने भी खूब सराहा और फ्लावर शो में लोगों के लिए मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत प्यारा बना हुआ है। आई एम ग्लैड कि सब रिसाइकल चीज़ें यूज़ की गई हैं यहाँ पर और बहुत क्यूट और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। सो प्लीज़ आए विज़िट करें और हमें ऐसे ही हर पार्क को बरकरार रखना चाहिए, ऐसे ही बनाना चाहिए। ये एरिया में बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने स्टार्ट की है, क्योंकि जब ये शाम के टाइम पे बच्चों को पार्क ले जाने के लिए हमारे एरियाज़ में यूजुअली एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। तो ये जस्ट मैंने अभी आज स्कूल से अपने बेटे को पिक करके जा रही थी, तो मैंने इनका बोर्ड देखा, तो मैंने कहा मैं ज़रूर विज़िट करूँगी और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, ये जिस तरह की इन्होंने एक्टिविटीज़ अरेंज की हैं, बच्चों के लिए राइड्स हैं, एडल्ट्स के लिए जिम की भी फैसिलिटी है, और ये जो फ्लावर्स की इतनी सारी वेराइटी हैं, तो बहुत अच्छा और बहुत नीट एंड क्लीन है फर्स्टली, और हर चीज़ प्रॉपर मैनेज है, को फैमिलीज़ अलाउ हैं, वाइब्स बहुत अच्छी हैं, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।